नमस्कार, मैं राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में बढ़ गया आरक्षण विवाद, इस्तीफा देकर भागी शेख हसीना। गुजरात में चुनाव के बाद भी नहीं थम रहा नेताओं का विवाद, मनसुख वसावा के चैतर वसावा पर आरोप। वडोदरा के वासना भायली इलाके की सड़कें गड्ढों में तब्दील। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन का सामना कर रही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो बांग्लादेश से भाग निकली हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने आज सोमवार 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उधर ढाका में हालात बेकाबू हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाल की अपील की है। कहा कि हम हालात काबू में ले आएंगे, भरोसा रखें। लेकिन बांग्लादेश में करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। पीएम शेख हसीना ने पीएम आवास छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गई हैं। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गई हैं। उनके पश्चिम बंगाल में होने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं बांग्लादेश के पीएम आवास में आंदोलनकारियों के घुसने की भी वीडियो सामने आई है। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बावजूद मनसुख वसावा और चैतर वसावा के बीच बयानबाजी जारी है। भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने राजपीपला में पत्रकार परिषद का आयोजन कर आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जिसका चैतर वसावा ने जवाब दिया है। ભરૂચના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા દ્વારા આજે રાજપીપળા ખાતે પ્રેસ વાર્તા રાખીને જે મારા નામજોગ આક્ષેપો કર્યા છે એ બનાવની હકીકત એવી છે કે ભરૂચના એક પત્રકાર ગૌતમ ઢોડિયા દ્વારા સાગબારા મામલતદારને ફોનથી ध्यान દોરવામાં આવે છે કે સેલાંબા ખાતે આ ફલાણા ગોડાઉનમાંથી અનાજ સગે વગે કરવાની તજવીજ ચાલે છે। મામલતદાર પોલીસ સમેત પૂરી ટીમ લઈને ત્યાં પહોંચે છે અને તાત્કાલિક ધોરણે ત્યાં ટેમ્પો ગોડાઉન સીલ કરવામાં આવે છે અને અનાજ કબજે લેવામાં આવે છે। આ અનાજ એ ભાજપના કોન્ટ્રાક્ટર મનીષ શાહ, જેમનું કોન્ટ્રાક્ટ 6 જિલ્લામાં છે, ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, વલસાડ, તાપી અને ગાંધીનગરમાં એ મોટા નેતાઓ સાથે, ભાજપના મોટા નેતાઓ સાથે એમની ઉઠક બેઠક છે અને એમના લીધે જ આટલા મોટા જિલ્લાઓમાં એમને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે। અને જે ગોડાઉન ત્યાં પકડાયું છે એ સેલાંબાના સચિન શાહ નામના વ્યક્તિનું ગોડાઉન છે ને એ અનાજના કૌભાંડમાં એ બંને જણની મિલીભગતથી વર્ષોથી આ ધંધાઓ ચાલે છે। આમ આદમી પાર્ટીના ઉપપ્રમુખ શૈલેન્દ્ર બહાદુરસિંહ ઠાકોર, જેમને માત્ર એટલા માટે એમાં આરોપી બનાવી દેવામાં આવ્યા છે કે આ ગોડાઉન એમને અગાઉ 1 મહિના માટે ભાડે આપ્યું હતું, જેનો કોઈ કરાર કે કોઈ પુરાવા સચિન શાહ કે મામલતદાર કે પોલીસ પર આજે પણ અવેલેબલ નથી। અને બીજા જે આરોપી કોંગ્રેસના આનંદ વસાવાને બનાવવામાં આવ્યા છે, એમનો વાક એટલો છે કે મનીષ શાહનો ફોન આવે છે કે ટેમ્પો જોઈએ છે, અમારે અનાજ મોકલવાનું છે સસ્તા અનાજની દુકાને, તો એ ભાઈ ટેમ્પો મોકલે છે। એમને ખબર નહોતી કે અનાજ ક્યાં મોકલવાનું હતું ને એમાં એમને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે। પરંતુ દર વખતની જેમ કૌભાંડો બહાર આવે એટલે પોતાના નેતાઓને બચાવ કરવામાં બહાર આવી જતા સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા અને વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી ભાજપની આ વખતે પણ એવા જ પ્રયાસો કરી રહી છે। આ સમગ્ર કૌભાંડમાં એમના મનીષ શાહ જે મહામંત્રી ભાજપાના હતા અને ત્યાંના સચિન શાહ નામના વેપારીનું કૌભાંડ હતું, છતાંય ભાજપા આજે આખું કૌભાંડ આમ આદમી પાર્ટીને કોંગ્રેસનું છે એમ કરીને સાબિત કરવા માંગે છે। પણ જે તે વખતે પણ આજે પણ મારું સ્ટેટમેન્ટ ત્યાં આજે પણ પ્રેસ મીડિયા ઉપર છે, આપણે જે તે વખતે પણ ચૈતર વસાવાએ કીધું આમાં જે પણ લોકો જવાબદાર હશે એમના પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ। એ બાદ 25 જુલાઈના રોજ એફઆઈઆર થયેલી છે અને અમે ક્યારે કોઈ અધિકારીને એમના બચાવ માટે અમે ભલામણો નથી કરી। ત્યારે મનસુખભાઈએ આખી હકીકત જાણવી જોઈએ અને પછી પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ આપવું જોઈએ। બીજી વાત, મનસુખભાઈએ રાજપાડીની ખાણો ખનીજો પર ચૈતર વસાવા રેડ કરે છેની વાતો કરી હતી, ત્યારે 21 જૂનના રોજ મેં પોતે મનસુખભાઈ વસાવાને પત્ર લખીને એક યાદી મોકલાવી છે
અને યાદીમાં મનસુખભાઈને કીધું છે કે આટલી જગ્યાએ 73 ડબલ એની જમીનો પર ઇનલીગલી ખાણો, રેતીની લીજો અને સિલિકા પ્લાન્ટ ચાલે છે. તમને સમય અનુકૂળતાએ આપણે જવાનું છે તપાસ માટે. આજ દિન સુધી મનસુખભાઈ વસાવાએ મને સમય આપ્યો નથી. મનસુખભાઈ ત્રીજી વાત કીધી છે કે ચૈતર વસાવાનું ઘર એ જંગલ ખાતાની જમીન પર બની ગયું છે. ત્યારે મનસુખભાઈ વસાવાને હું વિનંતી કરું છું, તમે પહેલા ફોરેસ્ટના અધિકારીઓને પૂછી લો એ જમીન જંગલ ખાતાની છે કે ચૈતર વસાવાની છે. પછી તમે સ્ટેટમેન્ટ આપશો તો વધારે વ્યાજબી રહેશે. એક સાંસદ તરીકે કેવડિયામાં આટલી બધી જમીનો છીનવાઈ ગઈ, નર્મદાના વિસ્થાપિતો, કરજણ, ઉકાઈ ડેમના વિસ્થાપિતો આજે ભટકે છે, એમને વળતર નથી મળ્યું. આ વિસ્તારોમાં શાળાઓમાં ઓરડાઓ નથી, શિક્ષકો નથી, દવાખાનાઓમાં ડોક્ટરો નથી, સાધનો નથી. ત્યાં મનસુખભાઈ વસાવા ક્યારે બોલશે નહીં. પણ ચૈતર વસાવા શું કરે છે એમાં મનસુખ વસાવાને ખૂબ જ રસ જાગે છે એવું મને લાગે છે. ત્યારે હું મનસુખ વસાવાને કહેવા માંગુ છું, હાલમાં જ નર્મદા કમલમ જે આલિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે 20 કરોડનું, એ કમલમ મનસુખભાઈ વસાવા ક્યાંથી પૈસા લાવીને બનાવ્યું એનો પણ મનસુખભાઈ વસાવા જાહેર જનતામાં પ્રેસ વાર્તા રાખીને ખુલાસો કરે એવી એમને હું વિનંતી કરું છું. गुजरात के वडोदरा शहर में सालों पहले कॉरपोरेशन में शामिल किए गए भायली इलाके के लोगों को टैक्स के पैसों से कोई सुविधा नहीं मिल रही है. गुजरात के वासना भायली रोड पर ब्राइट स्कूल के पीछे ग्रीन लीफ फ्लैट, द राइज फ्लैट, अर्थ एग्रो, पॉलिसी विला जैसी कई सोसाइटी हैं. यहाँ सड़कों पर सड़क से ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे निवासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. पिछले 5-7 सालों से यहाँ लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने घर खरीदे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग समेत हर कोई परेशान हो रहा है. नागरिक कॉरपोरेशन की ऐसी लापरवाही पर आक्रोश जता रहे हैं. આ વાસણા ભાયલી વિસ્તાર છે અને આ જે કેનાલ છે ત્યાંથી બ્રાઇટ ડે સ્કૂલ જે છે ત્યાં જવાનો જે રસ્તો છે એટલો બધો ખરાબ થઈ ગયો છે ને, અને બધા ટેક્સ પે કરે છે. બીજા રોડ સારા છે તો પછી આ રોડ પણ બનવો જ જોઈએ એમ, કારણ કે નાના છોકરાઓને લઈને મમ્મીઓ જનરલી વધારે મૂકવા જતી હોય છે. હવે ખાડામાં કંઈક મેનેજ ના થયું ને પડે વાગે તો કોણ જવાબદાર એના માટે? કેનાલથી બ્રાઇટ સ્કૂલનો જે રસ્તો છે બહુ જ ખરાબ થઈ ચૂક્યો છે. વચ્ચે પણ રસ્તો બનાવ્યો પણ તૂટી જ ગયો આખો, અને છોકરાઓ જાય છે સ્કૂલે તો પડી જાય છે, બેગ પડી જાય છે, બધાને બહુ જ પ્રોબ્લેમ આવે છે. પણ કોઈક સાંભળતું જ નથી, બનાવવા તૈયાર થતા નથી. 2-3 વખત કરી ચૂક્યા છે કમ્પ્લેન, પણ કોઈ આવતું જ નથી જોવા. આગળનો રોડ કરી નાખે પણ આ રોડ તો આવ્યો ને એવો જ રાખ્યો છે, કોઈ કરવા તૈયાર થતું નથી. यहाँ पर इतने खड्डे हो गए, शायद हम अपने बच्चों को 1 से 100 तक गिनती भी यहाँ पर उन खड्डों के माध्यम से ही सिखा सकते हैं. तो प्लीज़ सरकार से ये विनती है कि यहाँ पर जिस परेशानी का हम सामना कर रहे हैं, दिन भर दिन रोज़ जब भी बरसात आती है तब हमारे घुटने तक पानी भर जाता है. हमें ये डर भी रहता है कि हमारा बच्चा उस खड्डे में कहीं गिर नहीं जाए, कहीं कुछ ऐसे जानवर ना हो. और चांदीपुरा वायरस भी आ रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है. बच्चे बेचारे मौत से खेल रहे हैं. तो वो सब है, वो पानी भरने से ही सब ये सब हो रहा है. तो प्लीज़ सरकार आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पर आइए, एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए और यहाँ पर जो हमारी समस्या है उसका प्लीज़ निदान निकालिए. यहाँ जो रिहायशी इलाका है काफ़ी महंगे मकान भी हो गए, तो आप मानते हो कि यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉर्पोरेशन द्वारा करना हाँ चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. आप जब वोट लेने होते हैं तब तो आप घर घर जाकर के सब जगह जाते हो, तो फिर यहाँ पर ये जो लोगों की मेन समस्या है वो क्यों नहीं देखते हो? उसको भी आकर एक बार देख लीजिए. आपकी गाड़ियाँ बड़ी हैं, आपकी गाड़ियाँ ऐसे ही निकल जाएंगी, लेकिन जो 2 व्हीलर जिनके छोटे छोटे पहिए होते हैं वो बेचारे कैसे निकलते हैं, उनका भी देखना चाहिए. हर इंसान के पास में बड़ी गाड़ी हो वो ज़रूरी नहीं है. और यहाँ पर तो खड्डे ऐसे हैं कि बड़ी गाड़ी अभी यहाँ पर फंस रही है. जैसे कि वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, आप मानते हो कि इस प्रकार की कामगिरी से स्मार्ट सिटी हो पाएगी, ऐसा क्या मानते हो? अगर ऐसा ही काम रहा तो शायद मैं तो नहीं मानूंगी कि ये स्मार्ट सिटी बन सकेगी. भायली के रिहायशी इलाकों के साथ साथ वडोदरा के वेव्स क्लब निकट की सड़क भी इस कदर टूट गई है कि सड़क से ज्यादा गड्ढे ही दिखाई पड़ रहे हैं. इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों की दिक्कतों में और इजाफा हो रहा है. कई साल पहले भायली इलाके को कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी सड़कों की कोई ठोस मरम्मत नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग हर साल मॉनसून में परेशान हो जाते हैं. हर साल लाखों करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनती है, जो एक ही साल में उधड़ जाती है. और ऐसे में जनता के पैसों की सीधी फिजूल खर्ची तो हो ही रही है, उनको सुविधा भी नहीं मिल पाती. આ ભાયલી કેનાલ રોડ છે વડોદરાનો, અને કોર્પોરેશન એટલી નિષ્કાળજી છે કે વાત જ ના પૂછો. કોઈ રોડ રસ્તા તમે જોવો બધે ખાડા છે,
ને ટેકરા છે કોઈ રિપેરિંગ કરતા નથી કે સમારકામ કરતા નથી. બહુ એટલે બહુ બેદરકારી છે કોર્પોરેશનની. આખા વડોદરામાં, વહેલીમાં એવું નહીં, આખા વડોદરામાં ખાડા ખોદ્યા છે પણ એને બોરવાના નહીં. લોકો ભલે પડે, હાથ પગ ભાંગે, ગમે તે થાય પણ એને કશું જોવાનું નથી. કોર્પોરેશનને શું મેસેજ આપશો અમે તો એવું કહીએ કે જલ્દીથી જલ્દી આ સમારકામ થાય, રોડ રસ્તા સારા બને અને લાઇટોની વ્યवस्था થાય હરખી. ये तो अभी बारिश नहीं है तो खड्डे दिखते हैं, बाकी बारिश होता है तो पूरा पानी भरा रहता है, तो टू व्हीलर वाले को तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में. कितनी दिक्कत है, यानी मीन्स के कितने खड्डे ऐसे गिरे हुए कि जिसके वजह कॉर्पोरेशन ने ये काम किया करना चाहिए, क्या कहोगे उसके बारे में? हाँ, अभी तो फीलिंग करना चाहिए कॉर्पोरेशन को, क्योंकि अभी फैमिली वाले निकलते हैं टू व्हीलर पे तो उनको ज़्यादा दिक्कत है. गिर जावे, एक्सीडेंट हो जाए, छोटी मोटी चोट लग जाए. ये तो पॉश एरिया है, यहाँ तो अच्छा रास्ते होने चाहिए. बड़ौदा के पॉश एरिया में है ये सब. क्या कुछ कॉर्पोरेशन के क्या कहना चाहोगे? बस ये जल्दी से जल्दी फीलिंग कर दे तो लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए. अभी तो बारिश बंद है तो खड्डे दिखते हैं, बाकी तो दिखे नहीं. भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में पीएम हसीना शेख के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन हिंसक बन गया है. बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन और हिंसक हो गया है. इसमें रविवार को 98 लोगों की मौत हो गई. दरअसल प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने सड़कों पर उतर आए थे. पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई. रविवार को हुई हिंसा में 98 मौत के साथ ही 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं. बीते 3 हफ्तों में यहां हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है. 3 दिनों की छुट्टियां कर दी हैं. इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है. ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं. कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लगा दिया गया है. कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी. इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे. प्रदर्शनकारियों ने आज मार्च टू ढाका की योजना भी बनाई. उन्होंने आम जनता से सोमवार को ढाका लॉन्च मार्च में शामिल होने की अपील की. इसके लिए सुबह 10 बजे के बाद कई छात्र ढाका सेंट्रल शहीद मीनार पर इकट्ठा हुए. उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़े. इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज जवान ने देश को संबोधित किया. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील की है. पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है. इस मौके पर महादेव के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई. यूं तो मेवाड़ी परंपरा के अनुसार सावन के महीने की शुरुआत 15 दिनों से पहले हो गई है, लेकिन गुजरात में श्रावण महीने की शुरुआत 15 दिनों बाद होती है. आज श्रावण और सोमवार के पावन मौके पर गुजरात में श्रावण महीने की शुरुआत हुई है. 72 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है कि श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार के दिन ही हुई हो और सोमवार को ही श्रावण महीना खत्म होने जा रहा है. आज इस शुभ मौके पर पूरे गुजरात के शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई. बड़ोदरा के जेतलपुर रोड पर प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखी गई. श्रावण महीना शिवजी की आराधना का महीना माना जाता है और इस मौके पर सोमवार और श्रावण महीने के शुभ संयोग पर हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने कतारों में लगकर शिवजी के दर्शन किए और मंगल कामना की. शिवजी को दूध, फल, फूल, बिलीपत्र चढ़ाकर उन्हें रिझाने की कोशिश भक्तों द्वारा की गई. इस मौके पर हर हर महादेव के नारों से शिवालय गूंज उठा. હવે કાવનાથ મંદિરના દર્શન કરવા અમે લોકો આવી રહ્યા હતા. જે કહેવાય છે કે નવનાથ એટલે આપણા વડોદરાના રક્ષક કરતા નવનાથ માને જો આપત્તિ આવે છે એમાં આપણા નવનાથ સહાય થાય છે આપણને जनता. श्रावण का जो सोमवार होता है उसकी बहुत सारी महिमा होती है. जो कहते हैं कि जब समुद्र जब मंथन हुआ था उस समय पे श्रावण मास था और श्रावण मास में सभी देवी देवताओं धरती पे विराजमान होते हैं, जिससे जो भी मनुष्य अगर देवी देवताओं की आराधना का शिव जी की आराधना करता है तो उनके सभी जो दुख होते हैं हर शिव जी हर लेते हैं. जैसे कहते हैं कि 9 ग्रह जिनके अधिपति भी स्वयं शिव है,
श्रावण मास में पूजा करने से, अगर कोई भी शिव जी को प्रिय वस्तु चढ़ाने से, जैसे शिव जी का प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, भस्म, ऐसे जो लेपन होते हैं, जैसे सिरडी गन्ने का रस है, दूध है, चावल है, काले तिल है, बिली पत्र है, ऐसे वस्तु शिव जी को अर्पण करने के बाद अगर शिव जी के 11 ओम नमः शिवाय की 11 जो माला करता है उनको शिव पद की प्राप्ति भी होती है। और श्रावण मास का पहला सोमवार है, सभी भक्त अपने शिव जी को मनाने के लिए विविध द्रव्य से अभिषेक करते हैं। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर भीमनाथ महादेव मंदिर भी है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। भीमनाथ महादेव मंदिर नवनाथ महादेव मंदिरों में से एक है और भीमनाथ महादेव की काफी महत्ता है। आज श्रावण महीने और सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त भीमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और सुबह से ही यहां भगवान शिव जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। पूरे श्रावण महीने शिव जी की भक्ति कर उन्हें रिझाने की कोशिश भक्तजन करते हैं। इसी क्रम में आज भीमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की कतारें देखने मिली। प्रथम सोमवार पर आज वडोदरा शहर में भारी उत्साह है लोगों के अंदर और दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ रही है। आज सायाजीगंज विस्तार में भीमनाथ महादेव मंदिर है, जो सालों पुराना मंदिर है, 5-10 साल से पुराना मंदिर है। यहाँ पे यात्रीगण पूजा करने आते हैं, लोग यहाँ दर्शन करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब बोलते हैं कि नवनाथ में से एक, नवनाथ मंदिर में से एक नाथ भीमनाथ महादेव है। यहाँ की महिमा अपरंपार है बोले। और यहाँ पे भोलेनाथ का इतना चमत्कारी मंदिर है कि अगर आप यहाँ पे इनकी चौखट पे चढ़ते हो तो आपका हर वो काम और हर वो आपकी जो मन्नत है वो पूरी होती बोले। और श्रावण का परिवार है, महादेव को पोते हैं तो बम बम बोले सर शिवालय गूंज उठे हैं। और आज इतना मतलब आनंद का दिन है कि मतलब कहो मत बोल, क्योंकि वो भोले के दिन है। श्रावण महीना पहलो सोमवार है। आप श्रावण महीनो लगभग અમારા અંદાજે પહેલો શ્રાવણ ને છેલ્લો આજ પહેલો સોમવાર ને છેલ્લો સોમવાર પહેલી વખત આવ્યો છે। લગભગ 30-35 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો, આ પછી આ સોમવાર આવ્યો છે। શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર છે, આજે પહેલો સોમવાર છે। ભીમનાથ મહાદેવ નવનાથની ભીમનાથ મહાદેવ ગણાય છે। એ બી કોઈ બી ભક્તો કોઈ બી પૂજા મન તનસી કરશે એની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। આ ભીમનાથ મહાદેવ છે અને આની પર પહાડ કરેલો ભીમે એ પહાડ બી છે, હું બતાવું તમને। આ નવનાથની ભીમે પહાડ કરેલો દાદાનો વાગેલો આ ગદાનો એ છે। આ ભીમનાથ મહાદેવ છે। ભીમની જોડે કપટ કરેલી 5 ભાઈએ એમને કીધું કે શાની પૂજા કરે છે, કે તો મહાદેવની કરું છું, પણ ખરેખર એ હાંજલીની પૂજા કરી છે। ગદાને પહાડ કરી આ ભીમનાથ પ્રગટ થયા, એમનું નામ પડ્યું ભીમનાથ મહાદેવ। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर उमेश्वर महादेव मंदिर है, वहां भी आज सुबह से ही शिव भक्तों की कतारें देखी गई। सुबह से ही भक्तों ने हाथों में दूध और जल लेकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हुए मंगल कामना की। श्रावण महीना शिव जी का महीना माना जाता है। ऐसे में शिव जी को रिझाने के लिए भक्त पूरे महीने शिव जी के दर्शन कर उनके व्रत उपवास कर मंगल कामना कर रहे हैं। શ્રાવણ માસ મહિનાની અંદર સરસ વાઘોડિયા રોડ પર ઉમેશ્વર મહાદેવજીનું મંદિર આવેલું છે। ત્યાં સર્વ ભક્તજનો આવે છે અને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે। ખરેખર શિવજીની પૂજા કરવી એ ખૂબ મોટો લાભો છે અને એ આજે શ્રાવણ માસની અંદર અમને મળી રહ્યો છે। ખરેખર ભગવાન ભોળા છે અને ભગવાન સૌની મનોકામના પૂરી કરે છે। ખરેખર શિવજીના એક એક ગુણ તો જીવનમાં લાવીએ ને તો આપણું જીવન ધન્ય અને પવિત્ર બની જાય છે। શિવજીએ ગળામાં એમ કે વિષ ધારણ કર્યું છે, એવી રીતે શિવજી પાસેથી આ પણ શીખવાનું મળે છે કે આપણે પણ જો આવા કડવા ગુડ જીવનમાં ધારણ કરીએ તો આપણું જીવન પણ ઉજ્જવળ અને ભવિષ્ય બને છે। અને ખરેખર ભગવાનના આશીર્વાદ છે। અને અભિષેકની અંદર બધા જ તલ છે, ચોખા છે, દૂધ છે, દહીં છે, મધ છે, આ બધું લઈ આવી અને ભગવાનની પૂજા કરે છે। वो जो जिस चीज़ से जो अभिषेक करते हैं वो चीज़ का भी महत्व होता है। जैसे लोग चोखा से अभिषेक करते हैं, चोखा चढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो पुत्र प्राप्ति होती है। दूर्वा का जो अभिषेक है वो जुदी कामना हो, अपनी मनोकामना जो होती है वो पूर्ण करने के लिए दूर्वा से अभिषेक किया जाता है। और वो जो काले तिल से लोग अभिषेक करते हैं, अगर दूध से अभिषेक किया गया तो राजयोग बनता है। और इसी तरह अलग अलग चीज़ों की मनोकामना अलग अलग होती है और उसी तरह से लोग अपनी पूजा करते हैं। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा नेशनल वैस्कुलर डे पर विभिन्न आयोजन किए गए। राष्ट्रीय वैस्कुलर दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा की आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा एक विशेष वॉकेथॉन आयोजित किया गया, जिसमें आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 200 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने फ्लैग ऑफ कर वॉकेथॉन को रवाना कराया। आदिक्योरा अस्पताल से नटूभाई सर्कल तक के इस वॉकेथॉन के जरिए सभी को वैस्कुलर बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। एक वॉकेथॉन आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। આ વોકેથોન સમગ્ર દેશની અંદર 34 કરતાં વધારે શહેરોમાં થવા જઈ રહી છે અને આપણા લોકસભાના સ્પીકર શ્રીમાન ઓમ બિરલા, આપણા હેલ્થ મિનિસ્ટર શ્રીમાન JP નડ્ડાજીથી લઈ અને ઘણા મહાનુભાવો વિવિધ શહેરોમાં આ વોકેથોનને ફ્લેગ ઓફ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આજે વડોદરા ખાતે આ આદિક્યુરા હોસ્પિટલ દ્વારા આયોજિત આ વોકેથોનમાં મને ફ્લેગ ઓફ કરવા માટેની તક મળી છે। જે આ વોકેથોનની જે થીમ છે એમ્પ્યુટેશન ફ્રી વર્લ્ડ, એટલે જે પ્રકારે જે વાસ્ક્યુલર ડિસીઝીસ છે એના કારણે જે રોગો થતા હોય અને જે સમય મર્યાદામાં એનું નિદાન થાય અને સારવાર થાય, એ જો સમય મર્યાદા આપણે ચૂકીએ અથવા કોઈ કાળજી નિદાન ના લીધી હોય એને કારણે આપણે ના લઈએ અને એને કારણે ઘણીવાર આપણા શરીરના અંગને એમ્પ્યુટ એટલે કે કપાવવાનો વારો જ્યારે આવતો હોય ત્યારે આટલા એક ખૂબ જ પવિત્ર કોઝ માટે થઈને આ વોકેથોનનું આયોજન આદિક્યોરાની સમગ્ર નિષ્ણાંતોની ડાયરેક્ટરોની टीम द्वारा કરવામાં આવ્યું છે। मिशन एम्प्यूट फ्री इंडिया अंतर्गत वैस्कुलर बीमारियों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के सीनियर वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विजय ठाकुर, डॉक्टर सुमित कापड़िया समेत के डॉक्टर और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। જે વોકેથોનમાં બધા લોકો આપણા ઓલરેડી એ વોકેથોન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને આદિક્યુરાથી આપણે ચકલી સર્કલ સુધી ઓલરાઉન્ડ 250 આપણા મેમ્બર્સ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, જે હેલ્થ અવેર લોકો, એ બધા આપણે વોકેથોન કરીને પછી પાછા આવીશું। આપણું વાસ્ક્યુલર ડે નિમિત્તે આપણે મેઇન આયોજનનું પર્પસ છે કે બધાને હેલ્થ માટે અવેર કરવા। આપણે પોતાની કાળજી જેટલી આપણે રાખીશું એટલા રોગોથી દૂર રહીશું। વાસ્ક્યુલર સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા અને આદિક્યોરા હોસ્પિટલ તરફથી વાસ્ક્યુલર ડે તરીકે વોકાથોનનું આયોજન કરે છે। વોકાથોનના આયોજનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે દેશને એમ્પ્યુટેશનમાંથી મુક્ત કરવું, એટલે કે એમ્પ્યુટેશન ફ્રી ઇન્ડિયા। જો વાસ્ક્યુલરના રોગોની સમયસર યોગ્ય સમય સાચી રીતે સારવાર કરવામાં આવે તો એનાથી થતા એમ્પ્યુટેશન ચોક્કસપણે અટકાવી શકાય। આ ઉદ્દેશ સમાજમાં પહોંચાડવા માટે આજના રોજ વોકાથોનનું આયોજન કર્યું છે।
આદિપુરા હોસ્પિટલ આ ઉદ્દેશ માટે સતત કાર્યરત છે. જેમ કે આજે વોકથોનનું આયોજન કર્યું છે. ઉપરાંત અમે ઘણી બધી વેબિનાર અથવા ટોક શોઝ મારફતે સમાજના ડિફરન્ટ વર્ગોમાં આની માહિતી ફેલાવીએ છીએ. ઉપરાંત ડૉક્ટર મિત્રોમાં પણ CME મારફતે જેને કે કોન્ટિન્યુ મેડિકલ એજ્યુકેશન કહેવાય છે, જેના મારફતે વર્કશોપ મારફતે ડૉક્ટર્સમાં પણ એની અવેરનેસ ક્રિએટ કરીએ છીએ. એમને પણ માહિતગાર કરીએ છીએ કે નવી ટેકનોલોજી છે, નવી સારવાર છે, જે કરવાથી दर्दियों पग बचा सकता है. श्रावण महीने की शुरुआत के मौके पर वडोदरा के नर्मदा किनारे स्थित करनाली में कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भाविक भक्त उमड़ पड़े. देवों और ऋषियों के कठोर तप और साधना के चलते जिसके दोनों किनारे पवित्र माने जाते हैं, ऐसी नर्मदा नदी के किनारे वडोदरा जिला का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र करनाली है. विश्व के एकमात्र कुबेर भंडारी महादेव का पौराणिक मंदिर यहाँ है. श्रावण महीने की शुरुआत के मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त कुबेर भंडारी के दर्शन और पूजा के लिए उमड़ पड़े. श्रावण महीने के पहले दिन और सोमवार के सुभग संयोग के चलते सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान कर कुबेर जी को बिल्वपत्र, पुष्प, दूध, जल जैसी सामग्री अर्पण कर मंगल कामना की. आज प्रथम सोमवार है, श्रावण महीना तो અમે દર્શનાર્થે સૌ ફેમિલી સાથે આવે છે અને આ દાદાનું મહત્ત્વ સૌથી આખા વિશ્વમાં આ એક જ એવું મંદિર છે, સ્વયંભૂ મહાદેવ કુબેર દાદા. શું એ સર્વની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે અને હું છેલ્લા 26 વર્ષથી કુબેર દાદાના દર્શનાર્થે આવું છું. દાદાની ખૂબ કૃપાથી આજે બધે સુખી સંપન્ન છીએ અને ભગવાન કુબેર દાદાને એવી પ્રાર્થના કે સૌનું કલ્યાણ કરે, સૌ ભક્તોનું કલ્યાણ કરે એ કુબેર દાદા અમારી ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના છે હૃદયપૂર્વક. આજે સોમવાર છે, શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે. અમે અમારા ફેમિલી હંગાત દર્શન કરવા આવ્યા છે કુબેર ભંડારી દાદાના મંદિરે અને અમે દર્શનમાં બધું અર્પણ કર્યું છે. તલ, દૂધ, પાણી, ફૂલ, શ્રીફળ બધું અર્પણ કરીને અમે દર્શન કર્યા છે. અમને કુબેર દાદાની કૃપાથી શ્રદ્धा વધારે છે. आज श्रावण मास का प्रथम दिन. श्रावण मास वैसे तो भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का ही दिन है, लेकिन सोमवार से शुरू होने के वजह से विशेष महत्व रखता है. यह कुबेर जी का मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर स्वयं कुबेर दादा ने तपस्या किया और भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दे करके यहाँ पर कुबेरेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है. कुबेर दादा ने जब तपस्या किया तो भगवान शंकर ने समस्त लक्ष्मी जी का भी धन, देवताओं का भी धन यानी कुबेर भंडारी के रूप में उनको आशीर्वाद दिया. अमावस्या के दिन उनको आशीर्वाद दिया, इसीलिए यहाँ पर विशेष अमावस्या का भी मेला लगता है. श्रावण महीने की शुरुआत से पहले हरियाली अमावस्या के दिन भी कुबेर भंडारी महादेव के मंदिर में बड़ी संख्या में भाविक भक्त उमड़े. इस मंदिर में अमावस्या के दिन दर्शन से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी श्रद्धा है. ऐसे में गुजरात के साथ साथ अलग अलग प्रांत से आए लोगों ने रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार की छुट्टी और हरियाली अमावस्या के मौके पर नर्मदा नदी में स्नान कर भगवान के दर्शन का लाभ लिया. आज अमावस्या का दिन है, रवि पुष्यामृत योग का दिन है. आज पुष्य नक्षत्र है, इसलिए रविवार और हरियाली अमावस्या है. तो इसके लिए आज का जो यह अमावस्या है विशेष महत्व रखता है. खासकर माता लक्ष्मी को अगर पूजना हो और प्रार्थना करना हो उनको तो आज पुष्य नक्षत्र है, तो आज के दिन विशेषकर माता लक्ष्मी का पूजन होता है. आप सब लोग घर में पूजन करें. कुबेर भंडारी में आज दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से और गुजरात से तो है ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सभी जगह से भक्त लोग आए हुए हैं. सभी लोग शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं और सबको भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था किया गया है. शांतिपूर्वक दर्शन के साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण करके और अपने अपने घरों को लोग जा रहे हैं. मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जो बजट पेश किया है उसमें आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आया है. ऐसे में बीजेपी के नेता अलग अलग शहरों और जिलों में जाकर बजट लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लगातार 7वीं बार बजट पेश किया था. इस बजट को समझाने के लिए दाहोद में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा के विधायक केयूर रोकड़िया ने केंद्र सरकार के बजट की जानकारी देते हुए कहा कि ये बजट 10 साल का 3 गुना ज्यादा है.
કેન્દ્રીય બજેટ આ વખતે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે 11મું બજેટ રજૂ કર્યું. માનનીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામનજીએ સતત 6ઠ્ઠી વાર કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. કેન્દ્રીય બજેટની અંદર અલગ અલગ રાજ્યો આખા દેશને વિચારીને અલગ અલગ રાજ્યો હોય, શહેરો હોય, જિલ્લાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ બજેટ બન્યું છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિથી લઈને સમાજનો દરેક વર્ગ એટલે ગરીબો, મહિલાઓ, યુવાનો, ખેડૂતો, આદિવાસી સમાજ આ તમામને આવરી લેતું અને એના સર્વાંગી વિકાસને સાથે રાખતું આ કેન્દ્રીય બજેટ આ વખતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ બજેટ એ 2014ના બજેટ કરતાં 3 ગણું એટલે કે 2014માં જ્યારે કેન્દ્રીય બજેટ 16 લાખ કરોડનું હતું, આજે 44 લાખ કરોડનું આ બજેટ માનનીય મંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારામનજીએ રજૂ કર્યું. આનો મુખ્ય ટાર્ગેટ સ્વરોજગાર વધારવો, મોંઘવારી ઘટાડવી, જે દેશનો જીડીપી છે 8.2% એને મેન્ટેન રાખવો, એનાથી વધારવો, અને જે દેશની ફિઝિકલ ડેફિસિટ છે એને પણ એક લેવલમાં કંટ્રોલમાં રાખવી એની પાછળનો મુખ્ય આશય છે. ખેડૂતો માટે જે દાહોદ અને તેના વાત છે એમાં ખેડૂતો માટે પણ જે પ્રમાણે જે ખર્ચ કર્યો હોય એના પર 50% માર્જિન આપીને એમએસપીનો ભાવ સરકારે હાલમાં નક્કી કર્યા. એ પહેલું વચન એ કેન્દ્ર સરકારે પૂરું કર્યું છે. બીજી જે કૃષિની અને બાગાયતી 32 જેટલા પાકોની 109 જેટલી જાતો આગામી વર્ષમાં બહાર પાડવામાં આવશે, જે ક્રોપ રેઝિલિયન્ટ ક્રોપ હશે, એટલે કે જે આબોહવાને અનુકૂળ અને વધુ ઉપજ આપનાર ક્રોપ હશે. આગામી સમયની અંદર 2 વર્ષમાં 1 કરોડ કિસાનોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળવાનું પણ ટાર્ગેટ આ બજેટમાં લેવાયું છે. દરેક ક્લસ્ટર વાઇઝ શાકભાજીના કેન્દ્રો ઊભા કરવા એનું પણ ટાર્ગેટ આ બજેટમાં લેવાયું છે. જે તેલીબિયા કહેવાય, મગફળી, સોયાબીન, સરસવ અને સૂર્યમુખી, તલ, આ બધાનો પણ સંગ્રહ શક્તિ વધે અને દેશ આ વિષયમાં પણ આત્મનિર્ભર બને એનું પણ આ બજેટની અંદર સ્પેશિયલ પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતો માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ તેની જમીનની માલિકીનો હોય છે. ત્યારે જમીનની માલિકીના એટલે લેન્ડ રેકોર્ડ્સ દુરસ્થ થાય. ભૂ આધાર એટલે કે પ્લોટ યુનિટ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર, ભૂ આધારનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ આ બજેટની અંદર કરાયું છે. ખેડૂતની રજિસ્ટ્રી, વર્તમાન માલિકી એ તેને લાંબા ગાળાના અને જે ભૂમાફિયાઓ એમની જમીન પચાવતા હોય છે એની સામે રક્ષણ આપશે. કોર્ટના કેસો ઓછા થાય, તેનો ઝડપથી નિકાલ આવે એ વિષયની અંદર પણ એનો મોટો લાભ ખેડૂતોને મળવા જઈ રહ્યો છે. वडोदरा के अक्षर चौक में स्थित सिग्नेट हब में मनी सॉल्यूशन नाम के ऑफिस चलाने वाले एक संचालक ने कंज्यूमर समेत के लोन देने के नाम पर ठगी की है. वडोदरा में लोन दिलवाने की लालच में राजीव चौबे नाम के व्यक्ति ने 20 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया है. इस मामले पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर ठगी के शिकार लोगों ने अक्षर चौक निकट सिग्नेट हब में स्थित मनी सॉल्यूशन की ऑफिस पहुंचकर मामले का विरोध किया है. राजीव चौबे खुद शिकायतकर्ता संघ का मानव अधिकार का वाइस प्रेसिडेंट था और पुलिस मित्र न्यूज चैनल का आई कार्ड भी उसके पास था. सिग्नेट हब में स्थित मनी सॉल्यूशन कंपनी फिलहाल बंद कर दी गई है और संचालक फरार है. ऐसे में मामले पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है. समस्या एवी છે અમારી કે અહીંયા આગળ મેં એમને કોમ્પ્યુટર મારા ભાડે આપેલા છે. મની સોલ્યુશન કરીને અહીંયા આગળ લોન અપાવવાનું કામ કરે છે સિગ્નેટ હબમાં. એને ત્યાં આગળ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મેં મારા 5 કોમ્પ્યુટર ભાડે આપેલા છે, જેનું મને ભાડું આવતું હતું, પણ છેલ્લા 2 મહિનાથી એને મને ભાડું નથી આપ્યું. પછી એને મારી જોડે એવું વાત કરી કે આ મારે વેચાતા લેવા છે તો તમે એની રકમ મને કહી દો. એટલે મેં એમને રકમ આપી. મેં કહ્યું ભાઈ 5 કોમ્પ્યુટરની રકમ 26,000 રૂપિયા થાય છે, બરાબર છે. સંબંધના હિસાબે મેં રકમ ઓછી આપી એમને કે ભાઈ મારા 26,000, તો કે હું તમને 26,000 રૂપિયા આપી દઈશ. એમાં એને મને 2 મહિના સુધી તલાયો, કશું કર્યું નથી, બરાબર છે. અને હવે જ્યારે હું ઇન્કવાયરીમાં ભાડા માટે આવતો હતો વારે ઘરે લગભગ 2 મહિના ધક્કા ખાધા છે મેં, બરાબર છે. તો એને મને ભાડું પણ નથી આપ્યું અને કોમ્પ્યુટરના પૈસા પણ નથી આપ્યા. મારા કોમ્પ્યુટર બી એની ઓફિસની અંદર છે. જ્યારે હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાં હું આવ્યો તે વખતે ખબર પડી કે આ ભાઈ ઉઠી ગયા છે, ઓફિસો બંધ છે
અમારા કોઈના ફોન રિસીવ નથી કરતો. અને ઉમિયા મોબાઈલ, જાસ્મીન મોબાઈલ, IDFC બેંક, બજાજ ફાઇનાન્સ આ બધા પાસેથી બધી જગ્યાએથી એને મોબાઈલ અને કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટો બધી કટિંગ કરાવેલી છે. બરાબર છે. એવી માહિતી મારા પાર્ટનરે મને ગઈકાલે રાત્રે ફોન પર આપી, જેનું રેકોર્ડિંગ છે મારી પાસે. બરાબર. એને જ મને કીધું કે ઉમિયા મોબાઈલનું 17 લાખનું કરી નાખ્યું છે આ માણસે, IDFC બેંકનું 7 થી 8 લાખનું કરી નાખ્યું છે અને બજાજ ફાઇનાન્સનું 3 થી 4 લાખનું કરી નાખ્યું છે. અને આ ભાઈ અહીંથી ફરાર થઈ ગયેલા છે. હવે હાથમાં આવતો નથી એના મોબાઈલો ચાલુ. અમારી ડિમાન્ડ એવી છે કે અમે જાય પણ જગ્યાએ આના વિરુદ્ધમાં પોલીસ કમ્પ્લેન કરવા માટે અમે ગયા છે. બરાબર છે. તો પોલીસ સ્ટેશનમાંથી કોઈ પણ પોલીસવાળા અધિकारी અમને આ બાબતે સपोर्ट કરવા तैयार नहीं। दक्षिण गुजरात इन दिनों बुरी तरह बारिश का कहर झेल रहा है, जिससे तापी जिले में फिर एक बार बाढ़ की स्थिति का निर्माण हुआ है। डांग जिले में हो रही धुआंधार बारिश के चलते तापी जिले में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। डालवण तालुका से गुजरती अंबिका और पूर्णा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते तापी नवसारी जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे यहाँ प्रशासन भी एक्शन में है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है। अंबिका और पूर्णा नदी के किनारे से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है। डांग जिले में सापुतारा समेत के पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात के चलते अंबिका और पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तापी, वलसाड़, नवसारी में स्थिति बेकाबू हो रही है। वलसाड़ जिले में भी लगातार बारिश के चलते औरंगा नदी उफान पर है। ऐसे में जिला कलेक्टर अनसुया झा ने सभी को अलर्ट किया है। વલસાડ જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને આજની સ્થિતિ જોઈએ તો ઔરંગા ભયજનક સપાટી ઉપર છે. જ્યારે 4.5 મીટરની સપાટી આવી ત્યારે આપણે એલાર્મ શરૂ કર્યું હતું, લોકોને સચેત કર્યા હતા. અત્યારની સ્થિતિ એવી છે કે ત્યાંથી આપણા જે લો લાઇન એરિયા છે ત્યાંથી 150 લોકોને આપણે સ્થળાંતર કરાવાયું છે અને એ લોકો નજીકમાં એમના કુટુંબીજનો જે છે ઉપલા વિસ્તારમાં ત્યાં સ્થળાંતર થયેલા છે. અત્યારે મારો બધો ડાઉનલાઇન સ્ટાફ પોતાના ફિલ્ડમાં જ કામ કર્યું. SDMથી લઈ ચીફ ઓફિસર, TDO બધા જ્યાં જ્યાં પાણી ભરાયા છે ત્યાં રોડ ઉપર જ બધા છે અને બધા પૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. અમારી NDRFની ટીમ પણ સજ્જ છે, એ લોકો પણ સ્થળ ઉપર જ છે. એટલે જો વધુ કંઈ પરિસ્થિતિ વણસે તો અત્રેથી હાલ પૂરતા અમે સક્ષમ છીએ કે એને પહોંચી વળીશું. NDRFની બચાવ અને રાહતની કામગીરી છે. લો લાઇન એરિયામાં એ લોકો કામ કરતા હોય છે. એક હાલાર તળાવ છે અને બીજું ભાગલા ખુર્દનું, 2 તળાવ આપણા ઓવરફ્લો થયેલા છે આજની સ્થિતિમાં અને બંને તળાવ પર જે હાલારનું તળાવ છે તે આપણા ચીફ ઓફિસર અને એમની ટીમ તૈનાત છે અને સાથે સાથે આજુબાજુનું જે એનું કેચમેન્ટ એરિયા છે ત્યાં લોકોમાં જાણ થઈ જ ગયેલી છે કે જો તમને સ્થળાંતર કરવું પડે तो झड़पથી સ્થળાંતર થઈ શકે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, અ પરફેક્ટ કિચન ફોર યોર પરફેક્ટ ફેમિલી.
Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर के आंबाखोट गांव में एक घर में आग लग जाने से घर मालिक को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पावीजेतपुर के आंबाखोट गांव के निशान फलिया में छगन राम सिंह के घर में सुबह 7 बजे अचानक आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में घर में रखा हुआ घास, चारा और अनाज के साथ साथ सोने चांदी के जेवर भी आ गए। ग्रामजनों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया है। घटना में घर की सभी वस्तुएं जल जाने से घर मालिक को करीब 1,80,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी पाकर छोटा उदयपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को सहायता प्रदान की है। गई काले 9-10 वाग्याना सुमारे छगनभाई रामसिंहभाई नामना व्यक्ति ने त्या आग लागવાનો બનાવ બનેલો અને આગ લાગવાથી એમનું એક બાજુનું સંપૂર્ણ મકાન બળી ગયેલું છે। અંદર એમના કપડાં, વાસણો, એમના કંઈક થોડા ઘણા ઘરેના હતા એવું પણ બળીને ખાક થઈ ગયું છે। અને આ ઘરમાં માત્ર 2 વૃદ્ધ પતિ પત્ની જ રહેતા હતા, બાકીનો પરિવાર એમનો બીજા ગામે રહે છે। એટલે આજે અમે અહીંના સરપંચશ્રી, અમારા પાર્ટીના મહામંત્રી ભાઈ પ્રવીણભાઈ, આ બધાએ એની મુલાકાત લીધી છે અને સરકારશ્રી તરફથી જે કંઈ એમને સહાય મળે તેના માટે પ્રયત્ન કરીશું। અને અમે બધા આગેવાનો આવ્યા છે, એ આગેવાનો તરફથી પણ એમને સ્વેચ્છાએ કંઈક મદદ કરવાનું અમે નક્કી કરેલું છે। गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला के जीरा गांव में हो रही खनिज चोरी पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। अमरेली के सावरकुंडला में जीरा गांव है, जहां खनिज चोर बेलगाम हो गए हैं। यहां की शेत्रुंजी नदी से रेती की धड़ल्ले से चोरी हो रही है। खनिज माफिया नदी के तट से रेती चोरी कर रहे हैं। इस मामले ट्रक डंपरों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके बाद जीरा गांव की महिला सरपंच दक्षा चोड़वाड़िया ने इस मामले कार्यवाही की बात कही है। સાવરકુંડલા તાલુકાનું જીરા ગામ, જેમાં રાતને દિવસ શેત્રુંજી નદીમાં રેતીનું ખનન થઈ રહ્યું છે અને રાતને દિવસ ચાલુ છે। અમારા રોડ રસ્તાઓ પણ ખરાબ કરી નાખ્યા છે। गुजरात के भरूच में प्राचीन परंपरा के तहत अमावस्या के दिन मेघराजा की प्रतिमा का पारंपरिक स्थापन किया गया है। हर साल आषाढ़ महीने की अमावस्या पर भरूच के भोईवाड़ में मेघराजा की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जो छड़ी नोम के बाद 10वीं के दिन नर्मदा नदी के जल में विसर्जित की जाएगी। माना जाता है कि सूखे के समय बारिश की मांग के साथ भोई समाज के लोगों ने आषाढ़ महीने की 14 की रात्रि को मिट्टी की करीब 5.5 फीट ऊंची मेघराज की कल्पित मूर्ति बनाकर स्थापना की थी और बारिश की प्रार्थना की थी। उसके बावजूद बारिश नहीं बरसने से कुछ लोगों ने मूर्ति को खंडित करने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही धुआंधार बरसात हो गई थी। इसके बाद हर साल आषाढ़ 14 के दिन मेघराजा की प्रतिमा की स्थापना करने की परंपरा चली आ रही है, जो इस साल भी कायम रही। भृगु श्री पावन भूमि भृगु कच्छ ने भृगु कच्छ में वसेल भरूच ने भरूच भोई समाज छेल्ला 250 વર્ષથી વધુ સમયથી જલ દેવતાની પ્રતિમા બનાવે છે। એવું કહેવાય છે 56ની દુકાન, આ 56ની દુકાનની આગળનો 56ની દુકાન
જ્યારે પાણી માટે ખેડૂતો એવું કહેવાય છે ખેડૂતો એટલે જલદેવતા પાણી માટે પશુ પક્ષીઓ માણસો તરફડ્યા મારી રહ્યા હતા. પાણીનો કોઈ અંસાર નહીં, જાણે મેઘરાજા રીસાઈ ગયા હોય એવું લાગતું હતું. એવા સમયે અમારા સમાજના વડવાઓએ જલદેવતાની સ્થાપના કરવાનું વિચાર્યું હતું. ખૂબ ભજન કીર્તન કર્યા. સત્ય, પ્રેમ અને કરુણાથી અમારો સમાજ સંકળાયેલો છે અને જોડાયેલો છે. ખૂબ ભજન કીર્તન કર્યા પણ કોઈ અંતર આવ્યો નહીં. એમાં એક સંત આવીને અમને કહી ગયા કે તમે આ શું કરી રહ્યા છો આટલા વર્ષોથી? અમે કહે છે કે અમે ભગવાનની આજીજી કરીએ છીએ, મેઘરાજાની, જલદેવતાની, કે ભાઈ વરસાદ રૂપે પૃથ્વી પર આવે. એમને અમને કહ્યું કે જાઓ તમે માં નર્મદા નદીમાં જાઓ, માટી લાવો, માટી લાવીને તમે જલદેવતાની સ્થાપના કરો. અમે માટી લાવી, અષાઢી અમાસની રાતે એટલે 14મી દિવસે દિવાસાના દિવસે અમે કમ્પ્લીટ આ મૂર્તિ ઊભી કરી છે. તે અમે પછી મૂર્તિ બનાવી અને ખૂબ ભજન કીર્તન કર્યા. તો એ વરસાદનો કોઈ અંતર ના આવ્યો. છેવટે સંત એકદમ એ થઈ ગયા કે આ શું થઈ રહ્યું છે. તો અમે એમને પ્રતિજ્ઞા લીધી, હે જલદેવતા, જો તમે વરસાદ રૂપે પૃથ્વી પર નહીં આવો તો તમારી મૂર્તિને અમે ખંડિત કરીશું. અને એક ક્ષણ ઐતિહાસિક ક્ષણ બની ગઈ અને થોડા સમયમાં ખૂબ વરસાદ પડ્યો. આખા ગુજરાતમાં, આખા ભરૂચમાં ગામે ગામ વરસાદ પડ્યો. તે ટાઈમે નદી નાલાઓ સરોવર સર્જાઈ ગયા. ખેડૂતો પણ ખુશ ખુશાલ થઈ ગયા. અને આજે પણ અત્યારે અમે મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છીએ અને ये परंपरा में जो અત્યારે साची रखी है। श्रावण के महीने में शिव जी को रिझाने के लिए अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन वडोदरा की छोटी सी वाणी की आराधना देखकर शिव जी भी जरूर गदगद होंगे। शिव जी की आराधना का पर्व श्रावण महीना शुरू हो गया है और ऐसे में अलग अलग रूप से शिव जी की आराधना की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में रहने वाली छोटी सी वाणी ने अलग रूप में शिव जी की आराधना की है। 6 साल की वाणी ने 1000 क्यूब से भगवान शिव जी की प्रतिकृति तैयार की है। मांजलपुर के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव जी की मोजेक प्रतिकृति का डिस्प्ले किया गया है, जो बेहद अद्भुत बना है। वाणी 4 साल की उम्र से ये आर्ट सीख रही है और उसने परिवार और टीचर्स के सहयोग से 1 महीने में ये प्रतिकृति तैयार की है। मेरी डॉटर वाणी दिवेश पटेल है। उन्होंने 1000 क्यूब से इकट्ठा करके ये शिव जी का प्रतिष्ठा बनाई है और वो बनाने में उनको 1 महीना लगा है। कितनी उम्र है? वो 6 साल की है और ये 4 साल की थी तब से वो बना रही है। आज वो 6 साल की है और उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, काफ़ी सारे रिकॉर्ड उसने जनरेट किए हैं और उन्होंने 16 टोटल क्यूब नए सीखे हैं। उन्होंने रामलला की प्रतिष्ठा थी तभी राम जी भगवान बनाए थे। उस दिन से वो बोल रही थी कि मेरे को शिव जी भगवान भी बनाना है। तो आज श्रावण महीने का पहला सोमवार और उसने वो सोच के हमने सोचा कि अभी उन्होंने बनाते हैं। देश भर में भारत की आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, लेकिन देश का एक मंदिर ऐसा भी है जहां स्वतंत्रता दिवस कोई और दिवस पर ही मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। पूरा देश आज़ादी दिवस को 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन इस मंदिर में सन 1985 से तिथि के आधार पर आज़ादी दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसके चलते यहाँ तिथि के आधार पर ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भगवान अष्टभूमि महादेव का दुर्वा और जल से अभिषेक कर राष्ट्र उन्नति की कामना की गई। कहा जाता है कि दुर्गा के जल से सामूहिक रूप से महादेव का अभिषेक करने से विपत्तियों का नाश होता है और देश प्रगति करता है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों ने गर्भगृह में तिरंगा लहराकर हिंदू तिथि के हिसाब से देश की आजादी के पर्व को मनाया। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन भारत देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ था, उस दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए तिथि के अनुसार हम जन्मोत्सव हुए, कोई कार्यक्रम हुआ, हम भगवान के देवताओं का, भगवान का जन्मोत्सव सभी तिथि से मनाते हैं, क्योंकि तिथि का बड़ा महत्व है। अपने भारतीय संस्कृति के अंदर तिथि का बड़ा महत्व है। इसलिए देश आजाद हुआ, वो तिथि को
मनाते हुए हमने आज प्रातः काल की वेला में भगवान पशुपतिनाथ जी का दुर्वा से अभिषेक किया। दुर्वा से अभिषेक प्रतिवर्षानुसार तिथि के दिन आज अभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा भारत देश सुखी हो, समृद्ध हो, यशस्वी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब स्वस्थ रखे, सुखी रखे। भगवान महादेव से भगवान से प्रार्थना। भारी बारिश के चलते नदी के प्रवाह में फंस जाने की कई घटनाएं देश भर से सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश से भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किशन सिंह नामक एक व्यक्ति पशुओं के लिए चारा लेने गया हुआ था, लेकिन अचानक नाले में पानी का प्रवाह बढ़ जाने से वह बीचों बीच फंस गया। ये घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पाली गांव की है, जहां किशन सिंह पानी के तेज प्रवाह के बीच फंस गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को पानी से निकालने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी नाकामयाब ही रहीं। आखिरकार मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर शख्स का मशक्कत से रेस्क्यू किया। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। भाई, वडोदरा के कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कलाकार हो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वडोदरा का नाम रोशन करे, गुजरात का नाम रोशन करे और खासकर साहित्य का नाम रोशन करे, उनको तो आपसे मिलवाना बनता ही है। हमेशा ही वीएनएम एक जरिया बना है कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार, कोई भी खिलाड़ियों और आपके बीच का। और आज फिर एक बार वीएनएम टीवी एक माध्यम बनने जा रहा है वडोदरा की एक जानी मानी कवित्री। वैसे अन्य राज्य से है, लेकिन वडोदरा को कर्मभूमि बनाकर उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है और हाल ही में उन्हें स्वर साधना मंच के वार्षिकोत्सव 2024 में स्वर साधना साहित्य सम्मान 2024 से पुरस्कृत किया गया है। मैं बात कर रही हूँ वडोदरा की कवित्री डॉक्टर राखी सिंह कटियार की, जिन्हें ये सम्मान मिला है। डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी से हम बात करेंगे और साहित्य को थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। नमस्कार मयूरिका जी और वीएनएम टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी मैम, आपकी आवाज वैसे वीएनएम टीवी और डॉक्टर राखी सिंह कटियार, वीएनएम के दर्शक तो भली भांति आपको जानते ही हैं, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको डॉक्टर राखी सिंह कटियार के बारे में दे दूं कि मुख्य रूप से कविताएं लिखती है। न सिर्फ कविताएं, लघु कथाएं भी लिखती हैं और पिछले 25 सालों से अलग अलग पत्रिकाओं में उनकी कविताएं, उनकी लघु कथाएं प्रकाशित होती रही है। कई सम्मान भी उनके नाम जुड़े हैं, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर फेलोशिप सम्मान, सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मान, अस्मिता साहित्यिक सम्मान, ज्योतिबा फुले पुरस्कार। वैसे सूची जो है, फहरिस्त है, वो काफी लंबी है, लेकिन बहुत सारे सम्मान उनके नाम है। और एक सबसे बड़ी बात उनकी जो मैं बता दूं, बेहद उम्दा मंच संचालिका है और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालित करते हुए उन्होंने वाहवाही बटोरी है। मैम, मुझे लगता है कि आज मैं कम बोलूं और आप ज्यादा बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। स्वर साधना साहित्य सम्मान, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो सम्मान आपको मिला है, कितना महत्वपूर्ण और कितना इसे प्रिविलेज मानती हैं आप? दरअसल ये जो सम्मान मिला है, ये तो बहुत सारे सम्मान आजकल दिए जा रहे हैं और अच्छी भी बात है, पर विशेष रूप से स्वर साधना मंच की का ये प्रयास रहता है कि वो बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं और कानो-कान किसी को खबर भी नहीं होती। उन्होंने कुछ 2 ढाई महीने पहले ये प्रक्रिया आरंभ की थी और फेसबुक से और तमाम जगहों से अपनी जानकारी जुटा के हमको 10 दिन पहले सूचित किया कि आपको चयनित किया गया है और देश भर से 12 कवि-कवयित्रियों को उन्होंने
चयन किया और ये सौभाग्य की बात है कि मेरा भी उसमें नाम आ गया। और स्वर साधना मंच बहुत पुराना मंच है और बहुत अधिक कार्य कर रहा है साहित्य के लिए, तो मैं उनका आभार प्रकट कर रही हूँ बीएनएम टीवी के इस मंच से। जी। मैम, स्वर साधना सम्मान जो है वो किन महानुभावों को प्रदान किया जाता है? किस तरह के साहित्य को इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया के रूप में लेते हैं? जी, ये जो सम्मान है उसमें विशेष रूप से जो रचनाकार हैं, जो साहित्य की किसी भी विधा में लिखते हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, पर साहित्य के क्षेत्र में जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, उनको विशेष रूप से ये लोग चयनित करते हैं। जी, और आपके साथ बहुत सारे और लोगों को भी सम्मानित किया गया है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक जब सम्मान मिलने की खुशी तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपके साथ टक्कर के लोग हों। जी, बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे देश भर के जो हैं वो अलग-अलग क्षेत्रों के लोग जैसे कुछ लोग नाटक बहुत अच्छा लगते हैं, कुछ लोग मंच संचालन बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे अनेक लोगों से मिली और वो 12 लोग जो मुझे मिले तो ऐसा लगा कि मेरा जो अपना साहित्य का परिवार है उसमें और बढ़ोतरी हो गई और सभी को संस्था ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ चुना। तो इसलिए उनका भी ये कहना था कि उनको पहले से पता ही नहीं था और इस तरह से चयन प्रक्रिया जो है इसकी वो बहुत नामी है। लोग जानते हैं कि इस मंच से जो है किसी भी तरह का पक्षपात नहीं चलता है। जी, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल बड़े से बड़े पुरस्कार जो है वो कहीं न कहीं खरीदे भी जाते हैं, कहीं न कहीं अपने नाम करवाए जाते हैं और ऐसे एरा में अपने आप से साहित्य में सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मैम, जब साहित्य की बात हो रही है तो साहित्य के क्षेत्र में वैसे तो काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी कहीं न कहीं थोड़ी-सी इससे विमुख हो ही रही है। क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे आप देखते हैं ना जीवन के हर क्षेत्र में कुछ नई-नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं और नई चीज़ों का जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक भाषा और साहित्य की बात है, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें जो है वो प्राचीन हमारी धरोहर है, उसे आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे हम अपनी यहाँ पर जो हमारी संस्था है पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति, उसके माध्यम से हम लोग कॉलेज में जाते हैं और छात्रों से संपर्क करते हैं। उन्हें इस तरह की गतिविधियों में जो है संलग्न कराते हैं कि वो भी लिखें और पढ़ें और विशेष रूप से जो नवोदित रचनाकार हैं, उनका लिखा हुआ हम अपनी पत्रिका में छापते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर साहित्य प्रेमी को न सिर्फ़ मेरा लिखा हुआ प्रकाशित हो या प्रचारित हो, मुझे लगता है कि हमसे जो छोटे हैं, हमसे जो नए लोग हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्हें हमें बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम साहित्य को अपनी आगे वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुँचा सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नई पीढ़ी को ये विरासत देकर जाएँ क्योंकि नई पीढ़ी के हाथ में हमने मोबाइल और कंप्यूटर तो पकड़ा दिए हैं, लेकिन किताबों को कहीं न कहीं हमने उनसे दूर कर दिया है। हो सकता है कि साहित्य आने वाले दिनों में एक इतिहास बन जाए अगर इसी तरीके का जारी रहा, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं और डॉक्टर राकेश सिंह कटियार भी उन्हीं में से एक है। मैम, आप वीएनएम से और हमसे वैसे भी काफ़ी जुड़ी हुई हो, तो एक सवाल पूछना मेरे मन में आ रहा है कि आप कविताएँ भी लिखती हैं, आप पद्य भी लिखती हैं, गद्य भी लिखती हैं और आप मंच संचालन भी करती हैं, तो आपका पसंदीदा सबसे ज़्यादा क्या है? मुझे मंच संचालन करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मंच संचालन करना एक एक फ्रेमिंग की तरह है। जैसे एक तस्वीर को आपको फ्रेम देना है, अब वो कैसा फ्रेम करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि जो एक संचालक है, वो चाहे तो प्रोग्राम को आसमान पे पहुँचा दे और चाहे वो है जो है वो फर्श पे गिरा दे, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो मुझे लगता है जब ये ऊपर वाले ने ये चीज़ हमें बख्शी है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी भी कार्यक्रम में 4 चाँद लगाने में कुछ सहयोग प्रदान करें। तो मुझे मंच संचालन बहुत अच्छा लगता है और साहित्य में मुझे ग़ज़लें और गीत गाना बहुत पसंद है। जी। मैम, गीत गाना आपको पसंद है और बहुत सारे गाने हम आपने सुने भी हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ गुनगुनाना तो बनता है इस मौके पर। जी, मैं एक घनाक्षरी छंद जो है वो सबसे छोटा होता है, वो मैं रख रही हूँ आपके सामने। जी। कि घनन घनन घन जब छाए बदरा, घनन घनन घन जब छाए बदरा, सनन सनन सनकत आवे पुरवा, मगन मगन मन डोले मोरा मनवा, झनन झनन झम झूमे मोरा तनवा, छनन छनन छन बाजत पायलिया, छनन
छनन छन बाजत पायलिया, पनन पनन पन पानी भई अखिया, कनन कनन कण 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 से जिया, भनन भनन भाई पिया तोरी बतिया, भनन भनन भाई पिया तोरी बतिया। ये घनाक्षरी है। क्या बात है! तो मुझे पता है कि आपको ये फेवरेट भी है। आप काफ़ी बार इसे गुनगुना पसंद करते हैं। जी। चलिए बात काफ़ी कुछ हो रही है। मैम एक और सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है। पिछले 25 सालों से आप साहित्य के क्षेत्र में भी जुड़े हैं, गज़लें लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, कथाएँ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। मंच संचालन आप बहुत बेहद उम्दा करते हैं और अब क्या करना है? मतलब हर एक व्यक्ति की एक तो इच्छा ऐसी होती है कि मुझे इस जगह पर पहुँचना है। तो आगे और आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसमें पुष्पगुच्छ के रूप में और क्या ऐड ऑन करना है आपको? मैम साहित्य के क्षेत्र में तो कहते हैं ना इसकी कोई ऐसा स्तर नहीं है कि हम सोचे कि हमने ये कर लिया तो बस। ये गुणवत्ता वाला कार्य है। हमेशा जब हम कुछ लिखते हैं, तो अगले दिन जब उसी को लिखे हुए को देखते हैं तो लगता है कि इसे और बेहतर किया जा सकता है। जी। तो पहले तो जो चीज़ें हम रच रहे हैं, रचनाकारों का धर्म बनता है कि उसे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि वो कितना अच्छा है, कितना उचित है, कितना संदेश दे रहा है समाज को। तो इस तरह की रचनाएँ मैं अब अधिक लिखना चाहती हूँ। कि लोगों के मन का रंजन तो हो ही, साथ में समाज को एक दिशा भी प्रदान हो। और साथ में अब ये भी है, मैं चाहती हूँ कुछ नए जो पढ़ने-लिखने वाले हैं, उनको जैसे मन संचालन की कुछ तरकीबें हम बताएँ कि किस तरह से करना है, क्या चीज़ लेनी ज़रूरी होती जी। है। तो ये चाहती मैं नज़र रखती हूँ कि इस तरह के कोई मुझे अपने नए बच्चे मिलें, जो हुँ। इच्छुक हो करने के लिए, तो मैं बिल्कुल उनको पूरा सहयोग प्रदान करूँगी कि वो हुँ। किस तरह से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। जी, और हाल ही में राज्यपाल जी ने आपकी बहुत प्रशंसा भी की थी, एक वीडियो भी हमारे पास है उसके बारे में कुछ बताइए? वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह था। केरल साहित्य महोत्सव त्रिवेंद्रम में मनाया जा रहा था और मुझे मुख्य कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर दिया गया था। और जब राज्यपाल जी प्रोटोकॉल के तहत हमें उस स्टेज से उतर जाना था जब वो बोलेंगे, तो हम सामने सिक्योरिटी में जाके खड़े हो गए और राज्यपाल जी अपना जब भाषण दे रहे थे, उस समय उनकी नज़र मेरे पे पड़ी और वो तुरंत आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, जो आप हैं, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, साधुवाद जब हाथ जोड़े मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ये मेरे कल्पनाओं में भी नहीं था कि वो भी राज्यपाल महोदय भी जो इतने पढ़े-लिखे हैं और इतने ज़्यादा साहित्य के प्रेमी हैं, जी। उन्होंने ऐसी बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा ये चीज़ मेरे ज़हन में जो है वो अंकित हो गई। जी, आपको तारीफ़ें तो बहुत मिलती ही रहती है, लेकिन ये तारीफ़ कुछ ज़्यादा ख़ास थी और आशा करती हूँ कि इसी तरीके की तारीफ़ें और अलग-अलग उपलब्धियाँ आपके नाम होती रहें। मैं आपको सामने खड़े देख रहा हूँ। आप बहुत सुंदर तरीके से संचालन करती हैं। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राखी सिंह कटियार। डॉक्टर? राखी सिंह कटियार। और कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? वडोदरा गुजरात से। कमाल है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। बहुत सुंदर आप संचालन करती हैं। मैम एक आखिरी सवाल, आज की युवा पीढ़ी के नाम कोई संदेश? आज की युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ठीक है, हम लोगों के समय से आज बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से वो बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम कई बार अपने समय के हिसाब से उनसे चीज़ों की अपेक्षा करते हैं। जी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसा मैंने कहा ना, कुछ हमारी पुरानी धरोहर वैसे ही रहनी चाहिए। जैसे आजकल लिखना लोगों ने कम कर दिया है। बच्चों ने कलम पकड़ना बंद सा कर दिया है। लिख भी रहे हैं तो बस टाइप कर रहे हैं। तो लेखनी जो है वो माँ सरस्वती की हम वो देते हैं उसे उपमा। आप लेखनी जी। पकड़िए, आप जब कुछ पढ़ते-लिखते हैं अगर जब उसे लिख के करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए आपको याद हो गया। आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा लगता है लेखनी हमारी जो है वो दिशा निर्देशिका बन जाती है जब हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एक तो हुँ। ये है कि वो लिखें और कागज़ पे लिखें, जैसे कार्यक्रम में भी लोग मोबाइल से पढ़ते हैं और लोगों का भी वक़्त बर्बाद होता है, उनका मोबाइल बंद हो जाता है या ऊपर-नीचे हुँ, रचना हुँ। चली गई, तो जी। प्रवाह जो है फ्लुएंसी वो खत्म हो जाती है, तो हुँ। एक आनंद जाता रहता है। बिल्कुल। तो सब बच्चों से यही कहना है कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारे जो है गुण हैं, पर हम उसे किस तरह से ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका इस्तेमाल करें तकनीक का, लेकिन जो चीज़ें प्राचीन समय से चली आ रही हैं और अच्छी हैं हमारी धरोहर, उनको साथ में रखना ना भूलें, उन्हें साथ लेके आगे बढ़ें। तो तकनीक में जब इसका साथ होगा,
तो हमारा जो साहित्य संस्कृति हमारी धरोहर है वो जो विश्व में है अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है माता-पिता को विशेष ध्यान देना होगा कि बच्चे लिखते रहें और बच्चे पढ़ते रहें। भले ही आजकल अब स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, वहाँ किताबें ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ समय तो ऐसा ज़रूरी कर दें कि वो कुछ पढ़ें और कुछ लिखें। तभी जाकर हमारे देश की जो संस्कृति है, साहित्य है, उसे हम बरकरार रख सकेंगे। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का। वैसे आपको हमेशा ही जुड़ते रहना है क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही चीजें लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी हो। और डॉक्टर राखी सिंह कटियार जो वडोदरा की जानी-मानी कवित्री हैं, वो भी उन्हीं में से एक है। वीएनएम टीवी को आप दिन भर देखते रहें। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।